الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمين. حاضرین مجلس، تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، ابرائی بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے جو ہمارا خالق و مالک ہے، مربی و پالنہار ہے، جس نے ہم سب کو تمام مخلوقات میں سب سے افضل مخلوق بنایا، اور ساتھ ہی ساتھ درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، بالخصوص آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم مبارک علیہ. حاضرین مجلس، آج یوم عید کا دن، جس کے اندر ہم اور آپ شریک ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مہینہ رمضان مبارک کا روزہ فرض جو ہمارے اور آپ کے اوپر کیا، اس کے اختتام پر یہ عید کا دن، خوشی کا دن ہمارے لیے متعین کیا. اللہ رب العالمین کا جتنا شکریہ ادا کرے کم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے رمضان مبارک کے 30 روزے مکمل کیے. واقعی یہ اللہ رب العالمین کی توفیق ہی سے مکمل ہوا، ورنہ اگر اللہ رب العالمین کی توفیق نہ ہوتی تو ہم اور آپ صبح فجر سے لے کر کے غروب آفتاب تک بغیر کچھ کھائے پیے کسی کے بس کی بات نہیں، اگر اللہ کی توفیق شامل حال نہ ہو. آج عید کے اس خطبے کے اندر کچھ باتیں آپ کے سامنے لمحے فکریہ کے طور پر آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ ان باتوں کے ذریعے ہم اپنے اندر ایک فکر پیدا کریں اور اپنی سوچ کو بدلنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ آج کا دن خوشی و مسرت کا دن ہے، لیکن یہ عید کا دن، خوشی کا دن کن لوگوں کے لیے ہے؟ جب ہم حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو متفق علیہ بخاری مسلم کی حدیث ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان کے مکمل روزے رکھے ایمان و یقین کے ساتھ، ایمان و حساب و کتاب کی امید کرتے ہوئے کہ ہمیں مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی ہمارے حساب و کتاب لے گا، یعنی ایمان و یقین کے ساتھ جس نے رمضان کے مکمل روزے رکھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غفر له ما تقدم من ذنبه، عید کا دن اس کے لیے خوشی کا دن ہے. عید کا دن، خوشی کا دن اس انسان کے لیے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان کے مہینے کے اندر قیام کیا، یعنی تراویح کی نمازیں ادا کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان و یقین کے ساتھ غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس کے لیے اللہ رب العالمین سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. یقیناً یہ عید کا دن خوشی و مسرت کا دن ہے اس شخص کے لیے جس نے روزے بھی رکھے، جس نے قیام بھی کیا، اس انسان کے لیے خوشخبری ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ اس آدمی کو اللہ رب العالمین سے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کے لیے بشارت ہے. یقیناً عید کا دن اس آدمی کے لیے خوشی و مسرت کا دن ہے، شادمانی کا دن ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کا آخری عشرہ پا لیا، آخری 10 راتیں پا لی، اور اس میں تاگ راتوں میں جا کر کے اس نے قیام کیا اور اللہ رب العالمین کی عبادت کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پیچھے اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. یقیناً یہ عید کا دن خوشی کا دن ہے اس آدمی کے لیے جس نے رمضان
मुबारक के महीने को पा लिया और रमजान के महीने के अंदर तौबा इस्तिगफार करके अपने गुनाहों की माफी अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांग लिया, यकीनन ये उस आदमी के लिए ईद का दिन खुशी का दिन है। और उस आदमी के लिए खुशी का दिन नहीं है, बल्कि वो आदमी सबसे बड़ा बदनसीब इंसान है और सबसे बड़ा महरूम इंसान है, जिसने रमजान के मुबारक महीने को पा लेने के बावजूद उसने अपने गुनाहों की माफी अल्लाह रब्बुल आलमीन से न करा सकी, उसने तौबा इस्तिगफार नहीं किया, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी नहीं मांगी। यकीनन वो आदमी बड़ा बदनसीब है। यकीनन उस आदमी के लिए ईद का दिन खुशी का दिन नहीं है, बल्कि ईद का दिन खुशी का दिन किसके लिए है? एक शख्स हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास आता है, आपकी खिदमत में हाजिर होता है और क्या देखता है कि अमीरुल मोमिनीन एक हाथ में सूखी रोटी का टुकड़ा लिए हुए हैं और दूसरे हाथ में जैतून है, खा रहे हैं। उसने कहा, अमीरुल मोमिनीन और सूखी रोटी का टुकड़ा, आज का दिन तो खुशी का दिन है, ईद का दिन है, और आपके हाथों में रोटी का सूखा टुकड़ा आपके हाथ में मौजूद है। तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जो जवाब दिया था, उस जवाब को हम और आप भी सुने गौर से कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या जवाब दिया था। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उस शख्स को जवाब दिया था कि इन्ना हाज़ा लैसा ईद लिमन लबिसल जदीद व अकल सरीद, ये ईद का दिन उस आदमी के लिए नहीं है, ये ईद का दिन उस आदमी के लिए नहीं है जो अच्छे से अच्छा लिबास पहन ले, जो उनके से उनका लिबास अपने जिस्म के ऊपर चढ़ा ले, बल्कि और जो अच्छे से अच्छा खाना पका ले अपने घरों के अंदर, खानों की कई डिशें अपने घरों के अंदर लाइनें लगा दे, उस आदमी के लिए ईद का दिन नहीं है। तो फिर किस आदमी के लिए ईद का दिन है? हजरत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आगे बढ़ा बयान फरमाते हैं कि ईद का दिन उस आदमी के लिए ईद का दिन है। बल्कि ईद का दिन तो उसके लिए ईद का दिन है जिसके रोजे कबूल कर लिए गए। ये ईद का दिन उस आदमी के लिए ईद का दिन और खुशी मुशर्रत का दिन है जिसके रोजे कबूल कर लिए गए, वक़ुबिल मिन्हु क़ियामुहु, जिसके क़याम कबूल कर लिए गए, जिसने खड़े होकर के नमाजें पढ़ी, घंटों घंटों तक खड़े होकर के अपने पैरों में दर्द हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद बर्दाश्त करके उसने नमाजें पढ़ी, उसने रुकू सुजूद किए, सिर्फ इसलिए कि अल्लाह को राजी करना है, सिर्फ इसलिए कि अल्लाह को खुश करना है। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जिसने क़याम किया, जिसके क़याम कबूल कर लिए गए अल्लाह की बारगाह में, ये ईद का दिन उसके लिए दिन है। वग़ुफ़िर लहु ज़ंबुहु, और ईद का दिन उस आदमी के लिए खुशी का दिन है जिससे गुनाह माफ कर दिए गए, जिसकी बख्शिश कर दी गई। ये ईद का दिन उस आदमी के लिए ईद का दिन है। और आगे हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि ईद का दिन हर उस आदमी के लिए, हर वो दिन ईद का दिन है जिस दिन में इंसान अपने आप को अल्लाह की नाफरमानी से बचा ले, जिस दिन में इंसान अपने आप को अल्लाह की नाफरमानी से बचा ले, वो दिन उस आदमी के लिए ईद का दिन है। गौर कीजिए हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु इन जुमलों पर कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु क्या कर रहे हैं कि ईद उसके लिए है जिसके रोजे कबूल कर लिए गए, जिसकी नमाजें कबूल कर ली गई, जिसके क़याम कबूल कर लिए गए, जिसकी मग़फ़िरत कर दी गई, उस आदमी के लिए ईद खुशी का दिन है। हम अपने गरीबानों में झांक करके देखें, क्या ईद का दिन हमारे लिए खुशी का दिन जिसको हम मना रहे हैं, क्या हम इसके हकदार हैं? क्या हमने रमजान के रोजे हमने रखे हैं? क्या हमने रमजान के रोजे इस नियत से रखा है कि अल्लाह को राजी करना है, अल्लाह को खुश करना है? क्या हमने अल्लाह की रजामंदी के लिए रोजा रखा है? अगर देखा जाए तो कितने ऐसे लोग हैं सिर्फ जो लोगों को दिखाने के लिए रोजा रखते हैं कि लोग हमसे पूछेंगे कि भाई तुम रोजा हो, तो हम ये दावे के साथ कर सकते हैं कि हाँ हम रोजे से हैं, हम रोजे से हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कई कई रोजे छोड़ देते हैं। क्यों? इसलिए कि उनकी नजरों में रोजे की कोई अहमियत नहीं है, वो ये समझते नहीं कि ये रोजा क्या है। रोजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फर्ज किया है, रोजे को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फर्जियत हमारे ऊपर करार दिया है, और अगर हम रोजे को छोड़ेंगे तो क़यामत में अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हमें जवाब देना है, हमें जवाब देना है। हम अपने गरीबानों में झांक करके देखें कि क्या हमने रोजे अल्लाह की रजा खातिर रखे हैं कि नहीं रखे हैं। और हमने रमजान के महीने के अंदर जो नमाजें पढ़ी हैं, हम उन नमाजों के ऊपर गौर करें कि क्या हमने उन नमाजों को अल्लाह की रजा की खातिर हमने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है। या हमारा मकसद ये था कि चलो मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने के लिए दो चार लोग मिल जाएंगे, उनके साथ गप्पे लड़ा लेंगे, उनके साथ बात मुबाहिसा कर लेंगे और उनके साथ बैठ करके एक दूसरे की बुराइयां कर लेंगे, क्योंकि हमें इसी में मजा आता है, एक दूसरे की चुगलखोरी और एक दूसरे की गिरफ्त करने में मजा आता है। इसी मकसद से कुछ लोग नमाज भी पढ़ने आते हैं कि चलो कुछ लोगों से मुलाकात हो जाएगी, उनके साथ बैठ करके एक दूसरे की बुराइयां कर लेंगे।
याद रखिए, एक दूसरे की बुराई करना, एक दूसरे की गीबत करना, अगर यही हमारा सेवा रहा तो हमने अब तक जितनी इबादतें की हैं वो सारी की सारी इबादतें कल क़यामत के दिन हमारे मुंह पे मार दी जाएंगी। अल्लाह कबूल नहीं करेगा हमारी इबादतों को अगर हमने अपनी आदतों से, अपनी आदतों से अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफी नहीं मांगी और अपनी आदतों को, इन चीजों से अपने दूर नहीं रखा, तो याद रखिएगा कि हमारी सारी बातें रायगा कर दी जाएगी, बर्बाद कर दी जाएंगी। क्यों? इसलिए कि हमारे दिल जब साफ नहीं रहेंगे अपने मुसलमान भाई के लिए, अपने दिल हमारे जब तक साफ नहीं रखेंगे, याद रखिए कि हमारी एक भी बात अल्लाह के कबूल नहीं होगी। क्यों? इसलिए कि हमारे दिल के अंदर जब नफरत होगी एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के लिए हुस्न ज़न नहीं होगा। क्योंकि शरीयत और इस्लाम कहता है कि एक मुसलमान का, एक दूसरे मुसलमान का ये जिम्मेदारी है कि अपने मुसलमान भाई के लिए अपने दिल के अंदर मोहब्बत रहे। वो इंसान कैसा भी हो, लाख उसके अंदर बुराइयां पाई जा रही हो, लेकिन किसी मुसलमान को ये इख्तियार नहीं है कि अपने मुसलमान भाई की गीबत करे। क्यों? इसलिए कि गीबत करना, चुगली करना इतना बड़ा जुर्म है और इतना बड़ा कभी गुनाह है, संगीन जुर्म है कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, वला यग़तब बाज़ुकुम बाज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अख़ीहि मैता फकरिहतुमूहु। ऐ लोगों, तुम में से बाज़ से गीबत न करे। क्यों? इसलिए कि अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अख़ीहि मैता फकरिहतुमूहु। क्या तुम में से कोई इस बात को पसंद करता है कि अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाए? क्या तुम में से कोई इस बात को पसंद करता है कि उसके भाई की, उसके मुसलमान भाई की डेड बॉडी पड़ी हुई हो और उसका गोश्त काट करके वो खा ले? क्या तुम में से कोई इस बात को पसंद करेगा? हरगिज़ नहीं, तुम में से कोई इसको पसंद नहीं करेगा, उसको नापसंद करेगा। तो फिर इससे संगीन जुर्म है कि कोई एक मुसलमान भाई अपने मुसलमान की गीबत करे। हमारी सोच ये है कि भाई उसके अंदर ये बुराई पाई जा रही है तो हम क्यों ना बयान करें, क्यों ना बयान करें? तो याद रखिएगा, दो चीजें होती है, एक इल्जाम होता है, एक तुहमत होती है और एक चुगली होती है, एक गीबत होती है। बहतान ये होता है कि हम जिसके बारे में इल्जाम लगा रहे हैं कि इंसान चोर है, ये इंसान जनाकार है, ये इंसान अय्याशी का काम करने वाला है और ये चीज उसके अंदर नहीं पाई जाती है। गौर से सुनिएगा, हम जिस इंसान के ऊपर ये इल्जाम लगा रहे किसी भी चीज का, गलत काम का, अगर उसके अंदर वो चीज नहीं पाई जाती है तो यही तुहमत है, यही इल्जाम है। और शरीयत कहती है कि तोहमत लगाने वाले के ऊपर कोड़े मारे जाएंगे, कोड़े बरसाए जाएंगे। और जिसके अंदर बुराई पाई जा रही है, हम जिसकी बुराई कर रहे हैं कि ये इंसान फला काम के अंदर मुलविस है, ये इंसान फला काम के अंदर, फला गुनाह के अंदर मुलविस है, अगर जो उसके अंदर वो चीज पाई जा रही है, फिर भी बजाय हम उसको समझाने के, हम दूसरों के मीटिंगों के अंदर बैठ करके, ग्रुप बना करके और फिर एक इंसान की बुराई करते हैं कि भाई उसके अंदर ये चीज है और हकीकत में उसके अंदर है, यही गीबत है। और गीबत से भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मना किया है, वला यग़तब बाज़ुकुम बाज़ा। अगर जो उसके अंदर ये बुराई पाई जा रही है, आपके अंदर जुर्रत है, आपके अंदर हिम्मत है, आपके अंदर ताकत है, तो आप पर्सनली जाकर के उसको समझाएं, उसी कमियों को बताएं कि तुम्हारे अंदर ये कमी पाई जा रही है, ये गलत काम तुम्हारे अंदर पाया जा रहा है, इसकी इस्लाह कर लो। और अगर इसकी हिम्मत नहीं है तो फिर हम उसकी बुराई न करें, उसकी बुराई न करें। कि किसी मुसलमान को इख्तियार नहीं है। अगर हम इस तरीके से करते हैं तो याद रखिए, हमने जो रोजे रखे हैं, जो नमाजें पढ़ी हैं, ये सारी बातें क़यामत में हमारे मुंह पे मार दी जाएंगी, मुंह पे मार दी जाएंगी। इसलिए हम जब मस्जिद के अंदर आए तो इस इरादे से, उस नीयत से आए कि हम अल्लाह को राजी करने के लिए जा रहे हैं, अल्लाह को खुश करने के लिए जा